there is some. Okay, we have Union Minister Kiren Rijiju speaking. बताया उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी। Very pertinent point relating to the Constitution is raised here. When a removal of Speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, Speaker cannot sit in the chair. The actions of the Speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the Speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the Speaker of the Lok Sabha. Here, this is not at our fault. Last 7 years, around 7 years, the government is not ready to appoint the deputy speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir, Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose two members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir. Immediately after the election, Speaker and Deputy Speaker to be elected. Last 7 years, you are not elected as Deputy Speaker. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. Sir, who is with that? This question is very clear. Article 96 is very clear. Therefore, the House has to, sir, my submission is, sir, the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can get it. आप बैठ जाइए स्वागत राय जी। Please read 95(2) with me. During the absence of the Speaker from any sitting of the House of the People, the Deputy Speaker, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the House, or if no such person is present, such other person as may be determined by the House shall act as Speaker. So the main question is, Speaker is not there. Deputy Speaker has not been selected. So such other person as may be determined by the rules of procedure of the House. Has such other person been determined by the rules of procedure of the House? You are just going and sitting there. But they have not been decided, finalized by the House. Let there be a motion moved by the Parliamentary Affairs Minister. Sri Ravi Shankar Prasad ji. That Jagdambika Baldi. Otherwise you cannot sit. सर, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अगर प्रावधान को पढ़ा जाता है तो उसको पूर्णता में पढ़ना चाहिए। मैं 95 क्लॉज 2 को फिर पढ़ना चाहता हूं। During the absence of speaker from any sitting of the House, the people, the deputy speaker of he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the House. If no such person is present, such other person as may be determined. जो rules of procedure से जो प्रेजाइड करने के लिए अधिकृत है, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है इस पर प्रेजाइड करने का। जब कोई ऐसा पैनल का व्यक्ति नहीं है तब आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, कृपा करके देखिए, और इफ नो सच पर्सन, ये है कॉमा, इसलिए जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है रूल 10 के अंतर्गत, जिसमें आप भी आते हैं, आपको पूरा अधिकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप आर्टिकल 96 शंकर जी को अलाउ किया नहीं, आर्टिकल 96 का क्लॉज 2 देखिए। स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाइम होगा
तो सर मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करने तैयार बैठे हुए हैं। A point of order was raised by Ubaisi Saab, KC Venugopal ji, Saugat Rai ji. So regarding this point of order, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. Please. बस ये पढ़िए बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया। प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जावेद जी, श्री जावेद जी, अब संकल्प प्रस्तुत करिए। संकल्प प्रस्तुत करिए। Sir, I move the following resolution that this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the Leader of the Opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issues of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feel he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of this House, that in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights, and he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolve that he be removed from his office. मंत्री जी, Permission, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demand for grants, second batch for 25-26. नियम 377 के अंतर्गत आज जो मामले उठाने हैं उनकी अनुमति दी जा रही है। वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। As you wish. 10 hours already आज इस विषय पे जिसको हमने अभी अनुमति दी है और प्रस्ताव आया है, इस पे चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। 10 hours और ये चर्चा 10 घंटे होगी। प्रस्ताव की अनुमति भी दे दी है और जैसा स्पष्ट है कि ये सदन में जो संविधान का
आर्टिकल 94 है और लोकसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 200 है, इसके दोनों के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के पद के हटाने का संबंधित जो संकल्प है उस पर चर्चा अब शुरू होने जा रही है। आर्टिकल 94 के अंदर अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पूर्व सूचना दी गई हो, लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रक्रिया पालन किया जाए। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो रूल 200 है, एक मिनट आप सबको सदन के सामने, क्योंकि चर्चा शुरू होगी, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है। तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ए मेंबर विशिंग टू गिव नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन अंडर क्लास सी of Article 94 of the Constitution for the removal of the Speaker of the Deputy Speaker shall do so in writing to the Secretary General first and shall furnish the full text of such resolutions on receipt of a notice under sub-rule 1. A motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned on a day fixed by the Speaker, provided that the day so fixed shall be any day after 14 days from the date of the receipt of notice of the resolution. Rule 200A, उसके जो ग्राह्य करने का एडमिसिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन, जो संकल्प या प्रस्ताव को ग्राह्य करना, उसमें साफ लिखा है कि इन ऑर्डर दैट सच ए रेजोल्यूशन में बी एडमिसिबल इट शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली it shall be specific with respect to charges, it shall be clearly and precisely expressed, it shall not be contain arguments, inferences, ironical expression, imputations or defamatory statement. तो कृपया इस सदन के सामने, ये कोई सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष का नहीं है, एक हाउस के जो कस्टोडियन स्पीकर जिनमें सभी का विश्वास है, आज अगर उनके उस पर चर्चा करने आप जा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो आपने अपने टेक्स्ट में दिया है उस टेक्स्ट तक सीमित रखें, क्योंकि स्पीकर साहब की जेनरसिटी देखिए कि ये 10 फरवरी को जब 2000 नहीं आप नहीं क्यों नहीं, मैं बताऊंगा, ये मैं केवल ये जानकारी दे रहा हूं, नहीं आप सुन, 10 फरवरी 26 को ये नोटिस आई थी, 10 फरवरी 26 को माननीय सदस्यों के द्वारा ये नोटिस आई थी, जिसमें केसी वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों का था, और 2026 को नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस में 2025 अंकित था, उस नोटिस में रिजोल्यूशन नहीं था, उस नोटिस नहीं वो नोटिस है, फिर भी स्पीकर साहब ने उसको कहा कि इसको करेक्ट कराइए, और ये नहीं उसमें सिग्नेचर रिजोल्यूशन पे नहीं था किसी का, जो बाद में दिया गया वो भी फोटो सिग्नेचर था जो वैलिड नहीं था। नहीं, मैं एक बात जेनरसिटी की बात कर रहा हूं कि अगर स्पीकर साहब ने इसके बाद भी कि अगर फोटो कॉपी आपने संलग्न किया, और जो आज मूव किया है, जिन्होंने जो मूव किया है, चाहे हमारे तीनों लोगों ने, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, के सुरेश जी और डॉक्टर मल्लू रवि जी, मैं सदन को बता दूं कि ये तीनों सदस्य के दस्तखत नहीं थे, बाद में दस्तखत स्पीकर साहब ने दिया अनुमति। तो इससे साफ जो एडमिसिबल नहीं हो सकता था, जो ग्राह्य नहीं हो सकता था, सुन लीजिए, तो एक सदन में, अरे आप अपने स्पीकर की जेनरसिटी देखिए कि एडमिसिबल होने की जो ग्राह्यता होने के जो कारण है, अगर वो ग्राह्य नहीं हुआ फिर भी उन्होंने खुद अपने ऑफिस से कहा इसको करेक्ट करा लो, इस पे सिग्नेचर करा लीजिए। तो अगर उन्होंने ये अवसर दिया कि अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उन्होंने अगर ग्राह्य किया, खुद उस दिन से आज स्पीकर के चेयर पे नहीं आ रहे हैं, जबकि इसके पहले भी जब 1954 में आया, 1966 में आया, 1987 में आया, उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे। हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पे चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया, और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे तो उसका निस्तारण होना चाहिए था। ये बात
हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीजें हैं, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीजें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं? तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो डिबेट हो अच्छी हो, आज की डिबेट हो। नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे नहीं? चेयर को बोलने देंगे नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं, मैं आपको केवल तथ्य बता रहा हूं कि नहीं, तथ्य नहीं। देखिए, 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ, अध्यक्ष जी बी मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में